Dear students, good morning. I am Winkle Sharma, a government teacher is here with another educational video. This video is made only to compensate the loss of you students during lockdown situation in the country due to COVID-19. So students, watch this video till end and share it in the interest of other students. Dear students, our today's topic is a poem for class 9th, Jammu and Kashmir Board of School Education. The title of the poem is I Cannot Remember My Mother, written by Rabindranath Tagore. First of all, about poet. Rabindranath Tagore, the poet of this poem, was an Indian poet, philosopher and noble laureate. Was born in Calcutta. He wrote short stories, novels, and plays. He was a good painter as well. He was, in fact, a versatile genius. He wrote primarily in Bengali but translated his works in English himself. He was awarded the 1913 Nobel Prize in Literature for his work Gitanjali. प्यारे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी एक भारतीय कवि थे। ये न सिर्फ कवि थे बल्कि ये एक बहुत ही उम्दा किस्म के पेंटर भी थे। इनका जन्म कैलकाटा वेस्ट बंगाल में हुआ था। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और प्लेज लिखे हैं। ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे क्योंकि ये सिर्फ कविताएं ही नहीं, पेंटिंग भी बेहतरीन करते थे। प्यारे बच्चों, रविंद्र टैगोर जी ने बचपन से ही कविताएं लिखनी शुरू की थी और मात्र 17 साल की आयु में इनकी एक किताब छप गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं स्टैंजा वाइज ट्रांसलेशन। इस पोएम में कवि ने क्या कहा है। I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि प्यारे बच्चों, इस कविता की शुरुआती पंक्तियों से हमें ये पता चलता है कि कवि की जो यादें हैं उसकी अपनी माँ के बारे में वो थोड़ी धुंधली हैं, या यूँ कहें कि बड़ी मुश्किल से उसे अपनी माँ की शक्ल जो है वो याद आती है। पर कभी कभी उसे लगता है कि जब वो बचपन में टॉयज़ के साथ खेलता है, टॉयज़ मतलब अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, तो एक धुन है, एक आवाज़ जो है वो उसके खिलौनों के ऊपर मंडराती रहती है। कवि कहता है कि ये वही धुन है जो कभी उसकी माँ उसको झूले में झुलाते वक्त गुनगुनाया करती थी। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of shioli flowers floats in air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. Here child says that he cannot remember his mother. In the early autumn morning he feels that the fragrance of shioli flowers floating in the air. This fragrance came to him when his mother went to the temple for the morning service. Morning service means puja. प्यारे बच्चों, यहाँ बच्चा ये कहता है कि उसे अपनी माँ की याद नहीं आती
क्योंकि उसे पतझड़ के मौसम में शियोली के फूलों की सुगंध का एहसास होता है और ये सुगंध उसे तब मिलती थी जब उसकी माँ सुबह पूजा करने मंदिर जाती थी, यानी कि उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। Dear students, now the last stanza of the poem. I cannot remember my mother, only when from my bedroom I send my eyes into the blue of distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. Here poet says that he cannot remember his mother. He feels that she is there. When, sitting by the window of his bedroom, he looks at the vast blue sky. He feels that she is there in the sky and remembers faintly how she bent herself over him. The child feels that his mother is gazing at him. तो प्यारे बच्चों, यहाँ कवि फिर कहता है कि उसे अपनी माँ की याद नहीं आती, क्योंकि उसे हर वक्त लगता है कि उसकी माँ उसके पास ही है। जब वह अपने बेडरूम में बैठकर नीले आसमान को देखता है तो बच्चे को हर समय ये लगता है कि उसकी माँ उसे देख रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी बचपन में माँ उसे अपनी गोद में रख कर उसके ऊपर झुककर उसे निहारती थी। प्यारे बच्चों, आइए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। हॉवर, हॉवर मीन्स हवा में लहराना। हम मीन्स होंठ बंद करके गाना। रॉकिंग मीन्स झुलाना या हिलाना। क्रेडल, क्रेडल मीन्स झूला, छोटे बच्चों का झूला। टोन, टोन मीन्स धुन। सेंट मीन्स खुशबू, सुगंध। स्टिलनेस, खामोशी। गेज, गेज मीन्स घूरना या टकटकी लगाकर देखना। श्योली, श्योली एक प्रकार के फूल का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स recapitulate. The poet lost his mother when he was just a child. He has no vivid and clear impressions about her. However, there are some memories. The child feels his mother to be around while playing with his toys. In the autumn, he feels the fragrance of Shirley flowers, which his mother took for the morning service in the temple. When he looks at the distant sky, he feels that his mother is gazing at him. कवि ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है, पर कुछ यादें हैं जिनसे उसे लगता है कि उसकी माँ उसके आसपास ही है। उसे खेलते समय लगता है कि माँ के गाने की धुन उसके खिलौनों के ऊपर मंडरा रही है। शियोली के फूलों की सुगंध से उसे लगता है जैसे उसकी माँ अभी अभी मंदिर से पूजा करके आई हो, और नीले आकाश को देखकर, नीले आसमान को देखकर लगता है कि उसकी माँ आज भी उस पर झुककर उसे देख रही हो, जैसे बचपन में कभी गोदी में खिलाते समय उसे निहारती थी, देखती थी। प्यारे बच्चों, इन्हीं यादों की वजह से, इन्हीं मेमोरीज़ की वजह से कवि कहता है कि मैं अपनी माँ को याद नहीं करता, क्योंकि उसे हर समय, हर वक्त, हर पल ये लगता है कि उसकी माँ उसके आसपास ही है और उसे देख भी रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।